السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آج ہم انشاءاللہ تعالی دروس اللغة العربية کے پہلے والیوم کا لیسن نمبر 5 دیکھیں گے اس 8ویں لیکچر میں. عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں ان دس لیسن وی لرن دی فالوئنگ، کہ اس لیسن میں ہمیں یہ کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، جس میں وہ ایک مثال لاتے ہیں کتاب بلال، بلال's بک یا بک آف بلال، کتاب بلال. عربک میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے دو ورڈ ہے، کتاب اور بلال. کتاب، کتاب اور بلال. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بلال کی کتاب، یا انگلش میں ہم کہتے ہیں بک آف بلال. یہ اس کی یا کا یا آف، یہ جو ایس ہوتا ہے انگلش میں اوپر کاما کے ساتھ، اس سینس کو عربک میں دینے کے لیے عرب کیا کرتے ہیں، وہ دو ورڈز لاتے ہیں. ایک تو وہ ورڈ ہوتا ہے، وہ ناؤن ہوتا ہے جو پوزیس کیا جا رہا ہے، یعنی جو کسی کی ملکیت میں ہے، کسی کو بلانگ کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر بلال کی کتاب، اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب ملکیت ہے بلال کی، یہ کتاب بلانگ کرتی ہے بلال کو. ٹھیک ہے، پہلے یہ تھے الگ الگ ورڈ، کتاب اور بلال. عرب کیا کرتے ہیں، اس سینس کو دینے کے لیے بکا بلال یا بلالز بک، بلال کی کتاب، اس سینس کو دینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، جو چیز ملکیت میں ہے اس کو پہلے لاتے ہیں اور اس کی تنوین کو ہٹا دیتے ہیں. کہتے ہیں کتاب، تنوین کو پہلے ہٹا دیتے ہیں. دوسری چیز، پھر اس کے بعد اس تنوین کو ہٹانے کے بعد ایک اور چیز ہے کہ الف لام پہ بھی، الف لام بھی اب اس میں نہیں لگ سکتا، نہ ہی اب اس میں تنوین لگ سکتا ہے، نہ ہی اب اس میں الف لام لگ سکتا ہے. پھر دوسرا ورڈ، یعنی جس کی یہ کتاب ہے مثال کے طور پر، یعنی جو دا تھنگ وچ از possessed، جس کی جو کوئی چیز ہے اس کی طرف اس کو نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بلا لن، یعنی جو کسی چیز کی ملکیت رکھنے والا ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں، اس کو کسرہ دیتے ہیں، چاہے پھر وہ دو کسرہ ہو یا ایک کسرہ ہو، جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے، چاہے وہ دو کسرہ ہو ایک کسرہ ہو. اس لیے پہلا ورڈ جو ہے کہتے ہیں شیخ دا، دوسری مثال آتی ہے بیت الامام، دا امامز ہاؤس. کہتے ہیں ان کتاب بلال دا فرسٹ ورڈ از دا تھنگ possessed، یعنی پہلا جو ورڈ ہے کتاب ہے، یہ ایسی چیز ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، کسی کو بلانگ کرتی ہے. اٹ از کالڈ مضاف، اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں مضاف. دا سیکنڈ ورڈ بلال از دا possessor، یعنی جو مالک ہے، جو مالک جس کو بلانگ کرتی ہے. اٹ از کالڈ مضاف الیہ، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. اس کا مطلب ہے کہ کتاب اصل میں تھا کتاب اور بلال دو الگ ورڈ تھے، جب اس کو ایک اس کے ساتھ ملایا گیا بن گیا کتاب بلال. پھر ہم اس پارٹ کو کہتے ہیں مضاف اور دوسرے پارٹ کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف کا مطلب ہوتا ہے جس کی نسبت کی گئی، مضاف الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف نسبت کی گئی. مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے کہ دو ورڈز کے درمیان ایک نسبت ہے، وہ نسبت کیا ہوتی ہے، ملکیت کی، یعنی بلانگنگ کی، پوزیشن کی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نوٹ دیٹ دی مضاف ٹیکس نیدر دی ڈیفینٹ نار دی انڈیفینٹ آرٹیکل. ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ سے یہاں مراد ہے، کہتے ہیں کہ جو مضاف ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے کتاب ہو، نہ ہی یہ تنوین لے گا، نہ ہی اب اس پہ الف لام داخل ہو سکتا ہے. سو اٹ از رانگ ٹو سے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کتاب بلال، ہمیں کہنا ہے کتاب بلال، نہ ہی ہم کہہ سکتے الکتاب بلال. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
بلال جو ہے پہلی ہی بلال جو ہے یہ پراپر ناؤن پراپر نیم ہے. اور پراپر نیم جو ہوتے ہیں پراپر نیم معرفہ ہوتے ہیں. جب اس معرفہ اسم کی طرف اس کتاب کی نسبت کی گئی، یہ بھی اب معرفہ بن گیا. یہ کتاب بھی اب معرفہ بن گیا. اس لیے اب نہ ہی اس میں تنوین کی اب ضرورت ہے، نہ ہی ال کی ضرورت ہے. کیونکہ پوزیشن کی وجہ سے کہتے ہیں دا مضاف از ڈیفینٹ بائی پوزیشن، اپنی پوزیشن کی وجہ سے خود بے خود یہ ڈیفینٹ بن گیا. اینڈ ڈز ناٹ نیڈ دی ڈیفینٹ آرٹیکل، اس لیے اب اس کو الف لام کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نے کہا کتاب بلال، یہ اب بن گیا معرفہ. اب ایک خاص کتاب بن گئی. خاص کیوں بن گئی؟ کیونکہ ہم نے اس کی نسبت کیا بلال کی طرف، ایک خاص شخص کی طرف. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہتے ہیں دا مضاف الیہ از ان دی جینیٹو کیس. مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. جینیٹو کیس یعنی مجرور، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اس لیے ہم نے کہا بلال. اٹ کین ہیو تنوین، اس کو تنوین بھی لگ سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس ایگزامپل بھی دیکھا کتاب بلال. اور اس سے الف لام بھی مضاف الیہ جو ہے اس میں الف لام بھی لگ سکتا ہے، جیسے الامام. مثال کے بیت الامام یعنی امام کا گھر. یعنی یہ بیت جو ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ امام کی. امام کا گھر، دا ہاؤس آف امام. اس آف کو آپ یاد رکھیں، یا کا اردو میں جسے ہم کہتے ہیں، یا کہ امام کا گھر، دا ہاؤس آف امام، امامز ہاؤس. ٹھیک ہے. اس آف کے سینس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے عرب عرب کیا کرتے ہیں؟ یہ دو ورڈز کو ملا دیتے ہیں. پہلے ورڈ کی تنوین کو ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے ورڈ کو کسرہ دیتے ہیں. پھر پہلے ورڈ کو کہتے ہیں وہ مضاف، اور دوسرے ورڈ کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ. پھر کہتے ہیں کتاب من، یعنی اس لیسن میں آئے گا یہ ترکیب کتاب من. من ہم نے دیکھا تھا، من کا مطلب کیا ہے؟ ہو. لیکن اب کہا گیا کتاب من، یعنی کتاب کی نسبت من کی طرف کی ہوگی. اس کا مطلب ہو گیا اب ہوز بک. یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے بک آف ہوم، یا بک آف ہو، یا بک آف ہوم. اس میں بھی یہ آف کا سینس آ گیا. کتاب من whose book. Note that man is not in the genitive case because it is indeclinable. کہتے ہیں کہ من جو ہے، من پہ ہم یہاں پر کسرہ نہیں دیکھتے. نون جو ہے، نون پر کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ سکون. من پر ہم کوئی کسرہ نہیں دیکھ رہے. اٹ از انڈکلائنیبل. انڈکلائن کا مطلب کہ اس کی حرکات جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہے. دیٹ از اٹ ڈز ناٹ چینج ٹو انڈیکیٹ اٹ از فنکشن. دیر آر سم انڈکلائنیبل ناؤنز ان عربک وچ ریمین انچینجڈ. یعنی عربک میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے. جیسے ہم نے اسے پہلے دیکھا نا، حرف جر ہم نے دیکھا تھا من، اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس نون پر سکون ہے. اسی طرح من ہے، من ناؤن ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں نون پر سکون ہے. عربک میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر جو حرکت عرب نے رکھی ہے، جیسے یہاں پر سکون رکھا ہے من میں، من میں بھی سکون رکھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا ہاذا. ہاذا کے لاش پر الف ہے، الف پر مطلب سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا مثال کے طور آئینہ، نون پر ہم نے دیکھا فتح ہے، وہ بھی ایک. عربک میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ورڈز ان ورڈز پر جو حرکت ہے وہ ویسے ہی رہے گی، اس پر ضمہ سے کسرہ، کسرہ سے فتح، وہ چینج نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ چینج نہیں ہوگی. کلمات کو ہم ان ورڈز کو ہم کہتے ہیں مبنی کلمات. مبنی کا مطلب ہوتا ہے بنایا ہوا، جو بنایا گیا، یعنی یہ کلمات جیسے بنائے گئے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گی. یعنی اس میں ضمہ سے کسرہ کی طرف جانا، ٹھیک ہے، چینج آ جانا، یہ اس میں نہیں ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں علی مکتب المدرس، یعنی مدرس کے مکتب پر. کہتے ہیں نو ڈیٹ مکتب از ان دی جینیٹو کیس، یعنی کہتے ہیں کہ مکتب جو ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. بیکاز آف دی پروپوزیشن، کیونکہ اس پہ حرف جر الا لگا ہے، بیکاز آف دی پروپوزیشن الا. اینڈ المدرس جو ہے، مدرس جو ہے وہ بھی جینیٹو کیس، یعنی وہ بھی مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ. اصل میں تھا یہ ایسے مکتب المدرس، اصل میں تھا یہ مکتب المدرس، یعنی مدرس کا ٹیبل. لیکن مضاف جو ہے، پہلا ورڈ جو ہے مکتب، اس پہ حرف جر الا داخل ہو گئے. اس الا نے، کیونکہ مکتب ناؤن ہے، اس نے اس کو کسرہ دے دیا. ٹھیک ہے. یعنی مضاف جو ہے اس پر
चेंजेस आ सकती है। इस पर दमा भी लग सकता है, इस पर कसरा भी लग सकता है, इस पर फतहा भी लग सकता है। लेकिन मुज़ाफ इलैह जो है वो हमेशा मजरूर रहेगा। चाहे फिर उस पर एक कसरा लगे जैसे यहाँ पर है अलिफ लाम, या दो कसरा लगे। मगर मुज़ाफ जो है ये ओपन है, इस पर कोई भी हरकत हो सकती है। अगर पहले हरफ जर या कोई और वर्ड ना हो और नाउन होगा, तो इस पर ओरिजिनली दम्मा की हरकत होगी। मगर चूंकि यहाँ पर अला दाखिल हुआ है, बन गया अला मकतबिल मुदर्रिस से। कहते हैं नो डेट मकतब मजरूर है अला की वजह से, और अल मुदर्रिस मजरूर है किस वजह से? मुजाफ इलैह होने की वजह से, क्योंकि मुजाफ इलैह जो हमने अभी देखा मजरूर होता है। फिर दूसरी चीज़ कहते हैं कि दूसरी चीज़ जो हमें इस लेसन में पढ़नी है वो है तहता। तहता का मतलब है अंडर, यानी नीचे। ठीक है, तहता अंडर। द नाउन फॉलोइंग तहता इज इन द जेनेटिव। कहते हैं कि तहता के बाद भी एक नाउन होता है और वो भी मजरूर होता है, क्योंकि वो मुजाफ इलैह होता है। यानी तहता जो है ये मुजाफ होता है, एज ए मुजाफ आता है, और इसके बाद मुजाफ इलैह होता है। जैसे तहतल किताब, किताब के नीचे। तहतल मकतब, टेबल के नीचे। इसके मतलब तहत के मतलब अभी अभी और डिटेल्स भी देखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट ये कहते हैं, या जो है, या इज अ वोकेटिव पार्टिकल। या जो है ये ऐसा पार्टिकल है जिससे हम बुलाते हैं। ठीक है, या जो है इसे हम कहते हैं हर्फ निदा इन। हर्फ निदा इन, निदा का मतलब होता है बुलाना। कहते हैं अ नाउन फॉलोइंग या। कहते हैं कि या के बाद जो नाउन होगा, अगर उस पर दो दम्मा होंगे, उसे अब एक ही दम्मा दिया जाएगा। उसे अब एक ही दम्मा दिया जाएगा। जैसे उस्ताजुन ये बनेगा या उस्तादु, यानी ए उस्ताद। शेखुन ये बनेगा या शेख, यानी ए शेख। बिलालुन ये बनेगा या बिलालु, न कि या बिलालुन। या बिलालु यानी ए बिलाल। ठीक है। मिसाल के तौर पर या अब्बासु। अब्बासुन नाम किसी शख्स का, कोई शख्स अब्बास को बुला रहा है। या जो है ये क्या है? हरफुन निदा, यानी पार्टिकल ऑफ कॉलिंग। या जो है या का मतलब होता है अदउ। अदउ यानी मैं बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग। ठीक है, मैं बुला रहा हूँ किसी को, यानी इससे किसी शख्स को बुलाया जाता है अपनी तरफ, उसको उसकी अटेंशन अपनी तरफ सीख की जाती है, उसको बुलाया जाता है। इसे यहाँ पर या अब्बासु, अब्बा जो है इसे हम कहेंगे अल मुनादा, यानी जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको निदा दी जा रही है। सो या के बाद जो नाउन होता है उसे हम कहते हैं मुनादा। और मुनादा जो होता है उस पर एक ही हरकत लगती है, एक ही दम्मा लगती है। ठीक है, यानी द वन बीइंग कॉल्ड। अब्बास यहाँ पे मुनादा है, यानी द वन बीइंग कॉल्ड। कहते हैं द पार्टिकल या, जिसे ट्रांसलेट हम इंग्लिश में कर सकते हैं ओ। असल में पूरा इसका मतलब ओ का मतलब क्या है? यानी आई एम कॉलिंग, मैं बुला रहा हूँ। इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू कॉल somebody एंड द पर्सन वी आर कॉलिंग इज द ism which comes after this particle। ठीक है, जो इस पार्टिकल के बाद आता है। एंड इट इज नोन एज, और जिस शख्स को बुलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मुनादा, यानी द वन बीइंग कॉल्ड, द वन बीइंग कॉल्ड। इसलिए अब्बा सुन ये बनेगा या अब्बा सु, या अब्बा सु। इस पर अब एक ही दम्मा लगेगा, यानी ए अब्बास, यानी ए अब्बास मैं तुझे बुला रहा हूँ अपनी तरफ। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा तहता। अब्दुल रहीम ने लाया एक वर्ड तहता, अंडर। तहता जो है अरबिक में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं एडवर्ब्स। अरबिक में जर्फ, जैसे यहाँ पे लिखा है जर्फ। जर्फ ऐसा नाउन होता है जो कोई प्लेस, कोई जगह, या कोई टाइम का माना हमें देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तहता, तहता मतलब नीचे, ये जगह, इसलिए इसको हम इसुल मकान या जरफुल मकान कहते हैं। यानी द एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इस तहता के बाद जो वर्ड आता है वो मुजाफ इलैह होता है और उसको मजरूर बनाया जाता है। ये तहता जो है ये इसमें मकान है या ज़र्फ़ मकान है, यानी नाउन ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड द इसम दैट फॉलोज इट इज मजरूर, क्योंकि वो मुजाफ इलैह होता है, जैसे कि हमने अभी देखा। मिसाल के तौर पर अल हकीबतु तहतल मकतबी, द बैग इज अंडर द टेबल, द बैग इज अंडर द टेबल। ठीक है, तहतल मकतबी। अल हकीबतु ये यहाँ पे मुब्तदा है, और तहता जो है ये ज़र्फ है, और ये इसकी खबर है। और अल मकतबी जो है ये मुजाफ
इलैहि है। खबर जो है, खबर का पोर्शन सिर्फ ये है। अल हकीबतु तहतल मकतबी। हम मैंने इससे पहले कहा था कि खबर जो होता है, खबर या तो वन वर्ड हो सकता है, ठीक है, खबर या तो वन वर्ड हो सकता है, या खबर जार मजरूर हो सकता है, यानी हर्फ जर प्लस इसम मजरूर हो सकता है। इसी तरह खबर ज़र्फ भी हो सकता है, क्योंकि ज़र्फ हमने कहा था ये भी नाउन होता है, ये भी इसम होता है, मगर ये या तो कोई प्लेस डिनोट करता है या टाइम डिनोट करता है, ठीक है। इसलिए तहत जो है ये ज़र्फ खबर है, और अल मकतब इसके बाद मुज़ाफ इलैहि है, और अल हकीबत यहाँ पर इस मिसाल में ये इसकी मुब्तदा है। द बैग इज अंडर द टेबल। लास्ट में फिर फा अब्दुल रहीम कहते हैं द वर्ड इस्मुन एंड इब्नुन, यानी ये जो दो वर्ड है इब्नुन, इब्न अरबिक में कहते हैं इब्नुन, इब्नुन। देखिए मैंने यहाँ पर हमजा की निशान यहाँ पे नहीं बनाई। कहते हैं कि ये जो इसमें पहला अलिफ होता है ये हमजतुल वसल होता है। हमजतुल वसल का मतलब होता है कि अगर ये कलाम के बीच में आ गया और इससे पहले कोई हरकत वाला वर्ड आ गया या अल्फा लेटर आ गया, मिसाल के तौर पर वाव, तो इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। द वर्ड इस्मुन एंड इब्नुन, इस्म यानी नेम या नाउन, इब्नुन यानी सन, बेटा। कमेंस ये स्टार्ट होते हैं हमजतुल वसल से। व्हेन प्रेसिडेड बाय वर्ड द इनिशियल अलिफ इज ड्रॉप्ड इन प्रोनाउंसिएशन। कहते हैं कि जब अगर इससे पहले कोई वर्ड आ गया और उस पर हरकत होगी तो इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे मिसाल का अगर शुरू में आएगा तो हम पढ़ेंगे इस्मुल वालदी बिलाल, कि लड़के का नाम बिलाल है। वाह असल में पढ़ना था ऐसे वाह इस्मु, लेकिन चूंकि हम वसल है हम पढ़ेंगे वस्मु। वस्मु वाव को डायरेक्ट मिलाएंगे इस सीन के साथ, वस्मुल बिनती एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज आमिना, तो आमिना। इस्मुल वलद बिलाल वस्मुल बिनती आमिना, तो इस तरह इब्नुल मुदर्रिस यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्ट में इब्नुल मुदर्रिस तबीबुन, के मुदर्रिस का बेटा डॉक्टर है। वब्नुल इमामी ताजिरुन, और इमाम का बेटा मर्चेंट है। इस तरह यहाँ पर भी आई नबनु, हम नहीं पढ़ेंगे आई ना इब्नु, हम यहाँ पढ़ेंगे आई नबनु, इस नून को डायरेक्ट हम इस बा के साथ मिलाएंगे। आई नबनु हामिद, हामिद का बेटा कहाँ है, हामिद का बेटा कहाँ है। अच्छा इसी तरह इस लेसन में एक और वर्ड आएगा, वो है हुना का। हुना का मतलब है दियर, और ये इसमें इशारा है, जैसे हमने इसमें इशारा इससे पहले देखा था ना हाजिर, इसी तरह हुना का भी है, मगर ये इसमें इशारा खास है किसके साथ, प्लेस के साथ। ये इसमें इशारा है प्लेस के लिए, यानी ये जगह डिनोट करता है, दूर जगह, इसलिए हम इसको कहते हैं दियर, यानी ओवर देयर, यानी वहां पर। हुना का इज ए नाउन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉइंट टू अ प्लेस दैट इज डिस्टेंट और फार। मिसाल के तौर पर आयना किताब मोहम्मद, वेयर इज मोहम्मद बुक, मोहम्मद की किताब का है। हुआ अलल मकतबी, वो टेबल पर है, होना का ओवर दियर वहां पर, होना का यानी वहां पर, इशारा दूर जगह की तरफ, इसलिए होना का मतलब है दियर यानी वहां, और ये इसमें इशारा है लिल मकानिल बईद यानी दूर जगह को डिनोट करने के लिए। सो अब हमने इस लेसन में वापस हम देखते हैं, थोड़ा रिवीजन करते हैं। इस लेसन में हमने मोटा मोटा क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अल मुदाफ और अल मुदाफ इलैहि। हमने कहा कि अल मुदाफ यानी ऐसा नाउन जो पोजेस्ड है, यानी जो किसी की मिल्कियत में है कोई चीज़, और अल मुजाफ अलैह जिसकी तरफ उस चीज़ की निस्बत की जाती है, यानी जो मालिक होता है उस चीज़ का। इसलिए इसमें ऑफ का सेंस होता है या का सेंस होता है। मिसाल के तौर पर किताबुन मोहम्मदुन, ये दो वर्ड है, किताबुन मोहम्मदुन यानी ए बुक और मोहम्मद। जब हम कहेंगे किताबु मोहम्मदिन, किताब से तनवीन हटाएंगे, मोहम्मद को मजरूर बनाएंगे, अभी बनेगा मुजाफ, ये बनेगा मुजाफ इलैहि, अभी बनेगा मोहम्मद बुक या द बुक ऑफ मोहम्मद। इस तरह बिनतुन हामिदुन, हम कहेंगे बिनतु हामिदिन, हामिद की बेटी, हामिद की बेटी, यानी ये बेटी बिलोंग करती है किसको, हामिद को, हामिद की बेटी, मुजाफ मुजाफ इलैहि। किताबुन अल्लाह, हम कहेंगे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, द बुक ऑफ अल्लाह, मुजाफ मुजाफ इलैहि। कहते हैं किताबुन मुहम्मदिन, ये गलत है। सही क्या है, किताबु मुहम्मदिन। क्यों, नहज़िफ़ु तनवीन इंदल इजाफा, क्योंकि जब हम इजाफत करते हैं यानी पहले वर्ड को दूसरे वर्ड की तरफ निस्बत करते हैं, मुजाफ मुजाफ इलैहि बनाते हैं, हम तनवीन को मुजाफ से हटा देते हैं, ठीक है।
इसी तरह अल किताब मोहम्मद ये क्यों गलत है? क्योंकि अल भी अब इससे नहीं रहे, नहज़िफ़ अल इंदल इजाफा, अल भी अब इस किताब पे नहीं आ सकता, क्योंकि अब ये मोहम्मद की तरफ जब इस किताब की तरफ निस्बत की गई, अब ये खुद मारिफा बन गया, मुजाफ खुद मारिफा बन गया, अब इसमें ना ही अल की ज़रूरत है ना ही तनवीन की ज़रूरत है। इसी तरह किताब मोहम्मदुन भी नहीं कह सकते, क्योंकि मुजाफ इलैहि जो होता है, अल मुजाफ इलैहि मजरूरुन बिल कसरा, क्योंकि वो मजरूर होता है मोहम्मदिन। अमसिलतुन उखरा लिल मुजाफ वल मुजाफ इलैहि, मुजाफ और मुजाफ इलैहि की कुछ और मिसालें, खाल हामिदिन, खाल कहते खाल कहते मामा, खाल हामिदिन, हामिद का मामा फकीर गरीब है, खाल हामिदिन फकीर। किताब मन हाजा, ये किसकी किताब है? बुक ऑफ होम इज दिस, मस्मुर रजुली, आदमी का नाम क्या है? इब्नु मन अंत, आप किसके बेटे हो? अन अब्नु खालिदिन, मैं खालिद का बेटा हूँ, अन अब्नु खालिदिन। मस्मुल बिनती, लड़की का नाम क्या है? इस्मुल बिनती, लड़की का नाम जैनब, जैनब है। ठीक है, जैनब है। और हमने इसमें पढ़ा था, इस लेसन में हमने देखा कि हमें पढ़ना है अलमुनादा। अलमुनादा यानी ऐसा नाउन जिससे पहले यह हर्फ निदा या आता है, हुआ बिमाना अन तक़ूल लिसदीक़िका, यानी कहते हैं कि मुनादा यानी जब हम या हर्फ निदा या दाखिल करते हैं किसी नाउन पर, मिसाल के तौर या अब्बासु, इसका मतलब होता है जैसे कि हम किसी दोस्त को कहते हैं ताल, यानी कम टू मी, हम उसको बुला रहे हैं, हम मेरी तरफ आओ, यानी मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, जैसे या मोहम्मद या उस्ताद या वलद या बिंतु। हम अब या शेखुन नहीं कह सकते, क्यों? नहज़िफ़ तनवीन इंद निदा, क्योंकि निदा के वक्त हम मुनादा से तनवीन को हटा देते हैं। ठीक है, तनवीन को हटा देते हैं। अब हम लेसन पढ़ते हैं, लेसन से हमें ये और वाज़ेह हो जाएंगी ये चीज़ें। कन्वर्सेशन है सईद और यासर के दरमियान। सईद कहता है, सईद अ किताब मोहम्मदिन हादा या यासिर, देखिए, किताब मोहम्मदिन मुजाफ, मुजाफ इलैहि, मोहम्मद की किताब, किताब को कहेंगे मुजाफ, मोहम्मदिन ये मुजाफ इलैहि। क्या क्या मोहम्मद की किताब है ये? या यासिर, ए यासिर, असल में था यासिरुन, या दाखिल हो गया बन गया या यासिर। ए यासिर, क्या ये मोहम्मद की किताब है? यासिर जवाब देता है ला, हरफ जवाब नहीं, हाजा किताब हामिदिन, ये हामिद की किताब है। अगर हम इसका एराब करेंगे, हम कहेंगे हाजा जो है ये मुब्तदा है, किताब जो है ये मुजाफ है और खबर है, हामिदिन मुजाफ इलैहि। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मुजाफ प्लस मुजाफ इलैहि खबर है, नहीं, खाली किताब जो है ये ग्रामेटिकली खबर है। हामिदिन से क्या हो गया? हामिदिन से सिर्फ ये फायदा आ गया कि पता चला कि किताब किसकी है, स्पेस पे हो गया, वरना असल में था ये हाजा किताब, असल में था हाजा किताब, लेकिन जब हमने इसको मुजाफ मुजाफ इलैहि बनाया, किताब मोहम्मदिन बन गया हाजा किताब हामिदिन, या हाजा किताब मोहम्मदिन, हाजा किताब हामिदिन, हाजा किताब जैदिन। ठीक है, इसलिए हाजा मुब्तदा है, किताब इसकी मुजाफ खबर है, मुजाफ होने की वजह से तनवीन खत्म हो गई, हामिदिन मुजाफ इलैहि होने की वजह से मजरूर बन गया। फिर सईद कहता है आइना किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? यासिर जवाब देता है हुआ, वो, तहतल मकतबी हुना का, वो टेबल के नीचे है उधर, वो टेबल के नीचे है उधर। हुना का ये हमने अभी देखा, इसका मतलब है ओवर दियर, यानी वहां पर। ठीक है, वहां। और तहता जो है ये भी हमने अभी देखा कि ये ज़र्फ है, ज़र्फ मकान। ज़र्फ का मतलब ऐसा नाउन जो कोई प्लेस या जगह डिनोट करता है, यहाँ पर ये प्लेस को डिनोट करता है, अंडर, नीचे, तहता, अंडर। और हमने देखा कि इस ज़र्फ के बाद हमेशा एक मुजाफ इलैहि होता है, खुद यानी खुद भी ये मुजाफ होता है ज़र्फ, और इसके बाद मुजाफ इलैहि होता है। हुआ तहतल मकतबी हुनाक। फिर सईद कहते हैं अयन दफ्तर अम्मार, अम्मार की कॉपी, दफ्तर कहते हैं नोटबुक, दफ्तर अम्मार, अम्मार की नोटबुक कहाँ है? यहाँ से कहते हैं हुआ अलल अला, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस, वो मुदर्रिस के टेबल पर है, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस, वो उस्ताद के टेबल पर है। अगर हम इसका एराब करेंगे, हम कहेंगे हुआ ये मुब्तदा है, अला ये हर्फ जर है, मकतबी ये
इसमें मजरूर है और मुजाफ भी है। और अल मुदर्रिस ये मुजाफ इलैहि है। खबर कहाँ है? खबर है ये अला मकतबी, हर्फ जर। तो असल में था हुआ अला मकतबिन या हुआ अलल मकतबी। ठीक है। मगर मकतब के साथ जब अल मुदर्रिस जुड़ गया बन गया मुजाफ मुजाफ इलैहि, बन गया अला मकतबिल मुदर्रिस। हर्फ जर प्लस इस्म मजरूर, ये इसकी क्या है? ये इसकी खबर है। हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस। सईद कहते हैं कलमु मन, किस का कलम, हाजा है ये, या अली यू ए अली। ठीक है, एक ही दम्मा, ए अली, अलीयुन अली जवाब देते हैं हाजा कलमुल मुदर्रिस, ये मुदर्रिस टीचर उस्ताद का कलम है। हाजा हम कहेंगे हाजा जो है ये मुब्तदा है, कलमु ये इसकी खबर है और मुजाफ है, अल मुदर्रिस इसका मुजाफ इलैहि है। हाजा कलमुल मुदर्रिस, ये उस्ताद का कलम है। सईद कहते हैं आइन हकीबतुल मुदर्रिस, देखिए मुजाफ मुजाफ इलैहि, मुदर्रिस का बैग कहाँ है? अलीयुन अली जवाब देते हैं हिया तहतल मकतबी, वो टेबल के नीचे है। हिया प्रोनाउन है, इसम है, नाउन है, इसे हम कहेंगे कि ये मुब्तदा है। तहत ये ज़र्फ है, खबर है। और अल मकतबी ये इसका मुजाफ इलैहि है। फिर रहती है इस लेसन की एक्सरसाइज, वो हम इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे। फिलहाल हमने इस लेसन में क्या देखा? एक तो हमने देखा इसमें मुजाफ और मुजाफ इलैहि। मुजाफ मुजाफ इलैहि का सिंपल मीनिंग, यानी जब हमें ऑफ का सेंस, जो इंग्लिश में ऑफ होता है या उर्दू में का होता है, उस सेंस को लाना हो, तब हम मुजाफ मुजाफ इलैहि की कंस्ट्रक्शन लाते हैं, तरकीब लाते हैं, दो नाउन्स को लाते हैं और उसको आपस में जोड़ते हैं इस तरीके से कि उससे समझ आता है कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है। ठीक है। और मुजाफ जो होता है उस पर फिर तनवीन हट जाती है और अलिफ लाम भी उसमें नहीं लगता है। और मुजाफ इलैहि जो होता है वो मजरूर होता है, मुजाफ इलैहि जो होता है वो मजरूर होता है। और हमने देखा तहता, तहता जो है ये ज़र्फ होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या इस्मुल मकान कह ले, ज़र्फुल मकान कह ले, और इसके बाद भी मुजाफ इलैहि होता है। और हरफ निदा या हमने देखा, हरफ निदा या हमने देखा, या जिस नाउन पर दाखिल होता है उसको उस पर एक ही दम्मा लगता है। और या का मतलब होता है अदू, यानी आई एम कॉलिंग। और इसके बाद जो नाउन आता है उसको हम कहते हैं मुनादा, यानी जिसको बुलाया जा रही है, जिसको निदा दी जा रही है। ठीक है। और हमने देखा कि इस्म और इब्न जो है, इसका अलिफ जो है ये हमज़तुल वस्ल है। अगर ये कलाम के बीच में आ गया किसी वो, इससे पहले कोई वर्ड आ गया, तो हम इसके अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। और हमने देखा ये वर्ड होना, होना का एक तो है दूसरा वर्ड होना, होना का मतलब होता है हियर, वो इसमें इशारा है लिल करीब, लिल मकानिल करीब। होना, होना का जो है वो है इसम इशारा लिल मकानिल बईद। होना हियर, होना का दियर। इसके साथ जो है ये लेसन नंबर 5 जो है, इसका जो ये कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर रह जाते हैं इसकी एक्सरसाइज, वो हम इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।